منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں۔ یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں، تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام استقبال رمضان میں سید طاہر قادری آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے۔ پروگرام استقبال رمضان، جیسا کہ آپ شروعات سے ہمارے ایپیسوڈز میں ساتھ ہیں، الحمدللہ کئی اہم شخصیتوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کئی عنوانات پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے اس ایپیسوڈ کا عنوان تعلیم کے تعلق سے ہے، جو کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت نازل فرمایا تو وہ اقرا نازل فرمایا، جو کہ پڑھنے کے تعلق سے مناسبت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کرے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس طرف ہمیں ہدایت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس طریقے سے آج کا اہم ایپیسوڈ ہمارا علم سے تعلق رکھتا ہے، اور آج جو ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں ہمارے مہمان نہیں ہیں بلکہ ہمارے اسکول کے کرسپونڈنٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہماری گفتگو بنے رہے گی۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کا آغاز ہمارے مہمان ثنا خان، جو کہ بڑی کم سن عمر کے ہیں، سید امان اللہ قادری، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ نعت شریف سے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضۂ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضۂ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو،
موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، آج تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، آج تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی نعت شریف گنگنانے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسماں اس کو، بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسماں اس کو، زمین جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا، زمین جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا۔ بڑے ہی پیارے انداز میں نعت شریف سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے خاص نشست کی طرف لے چلوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آگے ہمارے پروگرام کے مہمان ہمارے ساتھ بڑی اہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں۔ یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں، تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام استقبال رمضان میں سید طاہر قادری آپ تمام کا آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ پروگرام استقبال رمضان میں ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ ہر ایک ایپیسوڈ میں ایک اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اور آج میں گیسٹ تو نہیں کہوں گا بلکہ ہمارے ٹیم کا ایک حصہ ہیں، آئیڈیل اسکول کے جو ہے کرسپونڈنٹ ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میری مراد
जनाब आमिर अजीज़ साहब, जो कि आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी के सदर और आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट भी हैं। सर, आपका मैं तहे दिल से जो है दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान में कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान, मोहतरम नाजरीन, इस साल आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से यह ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और पूरी टीम का, KGN स्टूडियो एंड टीम का, आइडियल इंग्लिश स्कूल और टीम का तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हैं, नाजरीन भी। और नाजरीन, हम भी आपका जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमाम हमारे एपिसोड्स देखकर हमें मोहब्बतों से नवाज रहे। सर जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। पहले तो सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह का बेहद बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारी ये खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मौके अता किए। बारहा हमारी ये कोशिश रहेगी कि स्कूल से किए जाने वाले ये काम जो लोगों को फ़ायदेमंद साबित हो, तो ये बात आगे बढ़ाते हुए चलूँ। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान एक इबादत का महीना है जी, और रमज़ान बांटने का महीना है। इबादत से मुराद इस महीने में हमें रोज़ा रखना है, सहरी करना है, इफ्तार, तरावी और दीगर नमाज़ें भी हमें अदा करनी हैं और इसके साथ साथ ज़िक्र व अस्कार का भी हमें ज़रूर ख्याल रखना है जी, ताकि हम बंदे ये महीने में रमज़ान को आप ऑर्गेनाइज कर एक बड़ा जो है सुनहरा मौका हासिल किए हैं, जो कि करनूल के लिए ही नहीं बल्कि अतराफ अकनाफ के जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये प्रोग्राम दूर दराज से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। बेहद तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से चंद सवालात करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी के जहन में सवाल या शक की शक्ल में पैदा होने वाले हैं और प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान का भी हमारा यही मकसद है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के जहन में पैदा होने वाले सवालात या शक का जवाब देने का हम हतल इम्कान कोशिश करेंगे। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, ख़ास कर हमारा ये मामूल रहा है कि हमारे आने वाले हर गेस्ट से हम जो है उनके ख़यालात पूछते हैं रमज़ान अल मुबारक के ताल्लुक़ से। आज तो मैं आपको गेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि आप ख़ुद हमारे प्रोग्राम के अहम हिस्सा हैं, रूह रवा हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि रमज़ान अल मुबारक के ताल्लुक़ से आपके ख़यालात क्या हैं? रमज़ान अल मुबारक कैसे मनाना चाहिए? रमज़ान के ताल्लुक़ से आपने जो सवाल किया बेहद उम्दा सवाल था, लेकिन इसके मुतालिक आपको मुझसे ज़्यादा उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इकराम बेहतर बता सकते हैं। जी, चुनाचे ये सवाल मेरे लिए था तो मैं अपने ख़यालात पेश करने की कोशिश करूँगा। जी, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब मैं एक मशहूर शायर अल्लामा इक़बाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेर से इसका आगाज़ करना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल आगाज़ कीजिए। माशाल्लाह। बेज़बानों को जब वो ज़बां देता है, बेज़बानों को जब वो ज़बां देता है, पढ़ने को पूरी खुराक देता है। माशाल्लाह। पढ़ने को पूरी खुराक देता है। बख्शने पे आ जाए उम्मत के गुनाहों को बख्शने पे आ जाए उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़े ही प्यारी बात आपने कही है, माशाल्लाह। तो ये बात आगे बढ़ाते हुए चलूँ। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान एक इबादत का महीना है जी, और रमज़ान बांटने का महीना है। इबादत से मुराद इस महीने में हमें रोज़ा रखना है, सहरी करना है, इफ्तार, तरावी और दीगर नमाज़ें भी हमें अदा करनी हैं और इसके साथ साथ ज़िक्र व अस्कार का भी हमें ज़रूर ख्याल रखना है। बांटने से मुराद हमारी दौलत को बांटना है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। जी बिल्कुल। इसमें ज़कात, सदक़ात, खैरात और लोगों को खिलाना पिलाना और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना है। अच्छा। और रमज़ान हमें अहम चीज़ सब्र सिखाता है। बिल्कुल, माशाल्लाह। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जो बंदा रोज़े रखता है, नमाज़ पढ़ता है, तरावी का एहतमाम करता है, वो बेशक अल्लाह से
अपना राब्ता रखता है। और दूसरी अहम बात, रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। बेशक। चुनाचे जो बंदा रोज़े रखता है, नमाज पढ़ता है, तरावी का एहतमाम करता है, वो अल्लाह ताला की कुर्बत पा जाता है। माशाल्लाह सर, जो कि एक बड़ी अहम बात आपने हमारे नाज़रीन के जो है सुपुर्द किया है। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड से मैं यही जो है आप तक बात पहुंचाना चाहूँगा, जैसे कि सर ने बड़ी प्यारी चीज़ कुरान शरीफ से जो है हवाला देते हुए कही है सब्र के ताल्लुक से, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करना देखें बड़ी जो है बहुत बड़ी बात होती है। नमाज पढ़ते हुए इबादत नज़र आती है, हज करते हुए इबादत नज़र आती है, ज़कात खैर खैरात देते हुए इबादत नज़र आती है, लेकिन कोई बंदा हमारे बाजू में है और वो सब्र कर रहा है, हमें महसूस तक नहीं होता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कि जो बंदा सब्र कर रहा है वो उसके परवरदिगार को मालूम होता है। तो इस बात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। आज के इस एपिसोड का अहम पैगाम भी आप समझें कि सब्र सबसे अहम जो है रमज़ान अल मुबारक का रुकन है, हिस्सा है, जो कि हमें करना चाहिए। तो सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक अहम सवाल जो है आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक तालीमी इदारे के सरबराह हैं, आप जो है बच्चों की तबीयत से वाकिफ़ हैं, बेहतरीन जो है बच्चों की तबीयत जानते हैं, उनकी साइकोलॉजी जानते हैं, इस ताल्लुक़ से बच्चों की तबीयत का बड़ा तजुर्बा है। तो रोज़े को लेकर तरावी के ताल्लुक़ से रमज़ान की इबादतों का अहम हिस्सा जो कहा जाता है रोज़ा और तरावी, इसके मुतालिक क्या ये बच्चों के लिए सख्त अमल इबादत है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं उस ज़ाते पाक की तारीफ़ करना चाहता हूँ जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला है। जी सर। जबकि एक हकीकी माँ सिर्फ़ एक माँ की मोहब्बत रखती है। तो इससे मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पर। जी सर। अपने ही स्कूल का, जब स्कूल में एक बच्चा 9 बजे सुबह में ब्रेकफास्ट करके आता है और दोपहर 1 बजे फिर कहाँ लंच करने जाता है, तो इसके दरमियान हमारे पास एक 15 मिनट का वक्फ़ा होता है जिसे इंटरवल कहते हैं। जी। तो इस इंटरवल में माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने ला के देती हैं। जी। तो जब एक हकीकी माँ अपने बच्चों को 2 से 3 घंटे भी भूखा रखना गवारा नहीं करती, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि एक अल्लाह ताला जो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है वो अपने बंदे को भूखा रखना कैसे पसंद करता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक लॉजिक है जो हमें समझनी है। जी। ये रोज़ा रखने से इसमें फ़ायदा अल्लाह ताला का नहीं, बंदे का ही फ़ायदा है। जी बिल्कुल। क्योंकि जब बंदा रोज़ा रखता है तो वो अल्लाह की सारी नेमतों को समझता है और अल्लाह की कुदरत को समझता है। रोज़ा आपकी फ़ख्र को मारता है और उन लोगों का एहसास दिलाता है जिसकी किस्मत में 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती। तो इससे मुराद हमें इन सब चीज़ों से अल्लाह की नेमतों का और अल्लाह की कुदरत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और दूसरा जो अहम सवाल आपने जो किया, जी, जो नमाज और तरावी के ताल्लुक से, जी सर। बेशक नमाज और तरावी, इसमें नमाज का डेफिनेशन ही ये है कि नमाज बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है। जब अल्लाह जिसके करीब होता है तब उसके सारी दुनिया उसके ताबे हो जाती है। माशाल्लाह सर, बेहतरीन बातें आप बता रहे थे हमारे नाज़रीन को। जैसे कि नाज़रीन आप देखें, मैं एक जो है सिंपल सा सवाल जो कि बच्चों के जहन में ख़ास कर आता है कि रमज़ान का रोज़ा और तरावी क्या एक सख्त अमल है जो कि बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता है, मतलब जो कि बालिग बच्चे हैं, बच्चों से मुराद, और अगर कमसिन बच्चे भी रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे भी बेहद खुश होता है कि इतनी कम उम्र में जो है बच्चे रोज़ा रख कर अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। तो सर ने 2-3 जो है अहम बातें अपने जवाब में बताए, जिसमें से पहली बात, जिस तरीके से माएँ जो है अपने बच्चे को 2-4 घंटे से ज़्यादा भूखा देखना पसंद नहीं करती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे अपने बंदे को जो है घंटों एक लंबी मुद्दत तक जो है भूखा देखना पसंद कर सकता है। बल्कि ये जो है रोज़ा, जैसे कि आप बता रहे थे कि रोज़ा अल्लाह के लिए नहीं बल्कि बंदे के लिए है। बड़ी प्यारी बात जो है सर हमारे हवाले कर रहे थे।
बंदे के लिए रोज़ा है, क्योंकि जैसे कि कुरान पाक में हमें ये बात मिलती है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ। दूसरी बात नमाज के ताल्लुक से, नमाज पढ़ने से अल्लाह के करीब हो जाता है बंदा। सर ने बताया, सर अपने अल्फाज में बता रहे थे, जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, क्या ही खूब जो है सर अपने बात के अख्तिताम पर, जवाब के अख्तिताम पर बता रहे थे कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह बंदे का हो जाता है, और दुनिया की तमाम तर नेमतें उसके ताबे हो जाती हैं, तमाम तर नेमतें अल्लाह की जानिब से उसके ताबे हो जाती हैं। और जब बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नेमत जो है उसकी झोली में डाल देता है। तो नाज़रीन, इस तरीके से हमें रमज़ान अल मुबारक को समझना चाहिए। नमाज़ों को, रोज़ों को और दीगर इबादतों को कभी मुश्किल ना समझें, बल्कि आसान समझें और अपने आप के लिए नेमत समझते हुए आगे बढ़ते जाएं और अपने आप को रब के हवाले करते जाएं। तो सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और अहम सवाल आपके सुपुर्द करना चाहूँगा। नाज़रीन, सर की जानिब मैं मुखातिब हो रहा हूँ। एक अहम सवाल जो कि मैं जो है सर से पूछना चाहूँगा। सर, ज़कात, सदक़ा फ़ित्र वग़ैरह और अल्लाह की मखलूक के लिए जो भी काम उनके मुतालिक किए जाते हैं, अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए जो भी काम किए जाते हैं, ज़कात की मदद से हो या सदक़ा फ़ित्र की मदद से हो, और सवाब जारिया के ताल्लुक से आपके ख़यालात क्या हैं, वो हमारे नाज़रीन को पहुँचाएँ। ये आपका सवाल बहुत खूब था, लेकिन ज़कात के ताल्लुक से उलमा इकराम इससे बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ ज़कात के ताल्लुक से कि ज़कात देने से माल घटता नहीं, लेकिन माल में इजाफा होता है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। और रही बात सदक़े फ़ित्र की, सदक़े फ़ित्र हमें ईद की नमाज से पहले अदा करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बताता है इस्लाम कि और आपके पड़ोसी की, जो गरीब है, आपकी और आपके पड़ोसी की ईद एक जैसी हो। जी, कोई भी फ़र्क ना हो, कोई भी फ़र्क ना हो। सही, माशाल्लाह सर। और सवाब जारिया के मुतालिक आप क्या कहेंगे? और सवाब जारिया के मुतालिक, सवाब जारिया कई किस्म का है। जी। जैसे किसी को पानी पिलाना, या किसी को खाना खिलाना, बीमार की इयादत करना, मस्जिद और मदारिसों के तामीरी काम में हिस्सा लेना, और किसी को बेहतर से बेहतर इल्म देना। क्योंकि जब हम इल्म देते हैं एक बंदे को, तो वो बंदा किसी और को पहुंचाता है। इसी तरह इसका मामूल हो जाता है। तो इसका मतलब जो बंदा इल्म देता है वो भी एक सवाब जारिया होता है। और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी है जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं और आगे जाके तालीम हासिल करने के बाद वो दूसरों को पहुंचाते हैं, वो भी एक सवाब जारिया है। और रही बात मस्जिदों में पानी की, जैसे हम कोई मस्जिद में बोर डाला दिए, तो वो बोर में जब तक पानी रहेगा ता क़यामत तक उसको सवाब मिलता रहेगा। जी माशाल्लाह सर, बेहतरीन बातें आप जो है शेयर कर रहे थे कि सवाब जारिया, क्योंकि इंसान के बाद भी वो सवाब उसके लिए जारी है। जैसे कि इल्म, ख़ास कर जो है सर का ताल्लुक़ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से है, तो ख़ास कर इल्म की एक बात मैं कहता हूँ, अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। इल्म, सवाब जारिया एक ऐसी चीज़ है जो कि बेहतरीन इल्म, जो कि आपको राह रास्त पर लाए। वो इल्म जब असातिज़ा अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, तो वो बच्चे आगे बढ़कर उस पर अमल करते हैं। फिर 1 से 4 तक वो इल्म पहुंचता है, फिर 4 से 400 तक पहुंचता है। तो इसी तरीके से जब तक कि वो इल्म फैलता रहेगा, वो सवाब उन असातिज़ा को भी पहुंचता रहेगा और उनके वालिदैन को भी पहुंचता रहेगा। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोग्राम को आखिरी सवाल की जानिब ले चलूँ। सर, आपसे जो है एक बात अहम जानना चाहेंगे हम, जो कि एक क़दीम इदारा पुराने शहर का आइडियल इंग्लिश स्कूल है, जो कि आपके वालिद साहब मरहूम अजीज़ राही साहब की बड़ी मेहनत है, बड़ी जो है उनकी काविशें थी, जो आज हम एक जो है इदारे की शक्ल में पूरे शहर वाले देख रहे हैं। तो आप इल्म के ताल्लुक से और इस इदारे के ताल्लुक से हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे? तो आपके इस सवाल को मैं पहले एक शेर से अर्ज़ करना चाहता हूँ। इल्म वो है जो तुझे पस्त से बाला कर दे, जी। इल्म वो है जो तुझे पस्त से बाला कर दे, इल्म की शम्मा से घर घर में उजाला कर दे। जी माशाल्लाह। तो ये आपने जो सवाल किया था, हमारे वालिद साहब जो अब्दुल अजीज़ राही साहब थे, तो इस
स्कूल की बुनियाद 1984 में रखे हुए थे जी मेरे वालिद और वालिदा मिलकर, जबकि एक मेरे वालिद एक आरटीसी डिपो में वर्क कर रहे थे और मेरी वालिदा एक गवर्नमेंट टीचर थी। लेकिन इन दोनों की कोशिश यही रही कि एक नौजवान तबका और एक कमसिन बच्चे जी जो इस इदारे से जुड़े और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी से अच्छी ज़िंदगी रोशन कर सके। और ये एक पहली स्कूल थी जी जो करनूल में एक उर्दू सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हुई अच्छा थी, माशाल्लाह। क्योंकि मेरे वालिद और वालिदा को उर्दू से बहुत शौक़ था। अच्छा माशाल्लाह। तो हमारी यही कोशिश है कि ये जो जद्दोजहद पहले से जो हो रही थी इसको ऐसे ही बरकरार रखें और इसको आगे से आगे आला मकाम पे पहुंचाएं, यही हमारी कोशिश है इसके साथ। जी माशाल्लाह सर, जैसे कि हम ये इस इंस्टीट्यूट में ख़ास तौर पर गौर कर रहे हैं कि आपके वालिद साहब के दौर में जो भी मेहनतें काविशों के साथ एक मकाम मर्तबे तक ये इंस्टीट्यूट पहुंचा है, अब आपके दौर में टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट है, जो है ज़रूरियात भी बढ़ रहे हैं ज़िंदगी के, और माहौल भी जो है बच्चों का भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ताल्लुक़ से आपके क्या मामलात में जो है तरक्की हो रही है, किन मामलात में आप आगे बढ़ रहे हैं? पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे वालिद मरहूम अब्दुल अज़ीज़ राही साहब जी की जो मेहनत थी वो मेहनत के सामने हमारी मेहनत कुछ भी नहीं। जी लेकिन हमारी एक कोशिश है यहाँ पर कि जो हमारे हाथ में आज जो इस्टेब्लिशमेंट आइडियल स्कूल का हुआ है इसको हम आगे से आगे बढ़ा सकें। तो इसीलिए हम इसमें एक तब्दीली लाई हुई है जी। कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी एजुकेशन भी हम स्कूल में चला रहे हैं, अच्छा माशाल्लाह। जिससे हम स्कूल में हिफ्ज़ का भी शोबा स्टार्ट करे हैं जी और बच्चों को दीनी तालीम के तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। ये शोबा हिफ्ज़ रखने का बहरहाल मेरा और मेरे भाई साहब उमर अज़ीज़ का मकसद ये है कि बच्चे यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन और दीनी एजुकेशन दोनों हासिल करते हुए अपना मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर संवारे। जैसे कि हमारे वालिद साहब के तारीख़ी काम इस इदारे से जुड़े हुए हैं, जैसे साइंस फेयर प्रोग्राम पहले से एक नेशनल साइंस डे तो चल रहा था पूरे मुल्क में, लेकिन हमारे स्कूल पहली स्कूल है जो बुनियाद साइंस फेयर की है इसमें हमारे शहर करनूल में। और इसमें हमारे वालिद साहब जो एंटीक के बहुत बड़े शौकीन थे, तो एक एंटीक का स्टॉल भी लोगों को मालूम होने के लिए रखा हुआ था। और उसके साथ साथ बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो उनके बच्चों के ख़यालात जो प्रोजेक्ट के ज़रिए मालूम होते थे रखने का भी अहम मकसद बच्चों का टैलेंट बाहर निकालना था। और इसके साथ साथ हमारे स्कूल में उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी बहुत चल रहे थे पहले, जैसे मेस्को एजुकेशन के ताल्लुक़ से स्कूल में स्कॉलरशिप दिए जाते थे। तो इसी के चलते हुए हमारी भी यही कोशिश है कि हम हमारे बच्चों को ऐसे ही प्रोग्राम्स, ऐसे ही एजुकेशन देते हुए, जिसे एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन जो आज के तौर पे बहुत चल रहा है, जो बच्चे को पढ़ाते खिलते हुए पढ़ाना, तो इसे भी हम लोग स्कूल में एक एजुकेशन एक सब्जेक्ट बेस करके पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ मेरा एक अहम लोगों से एक एडवाइस है कि आज माशरे में हम लोग जिस तरीके से गुज़र रहे हैं, इसमें हमारे बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग ये चीज़ बहुत भूल चुके हैं। दीनी इल्म इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही रहेगा, लेकिन दीनी इल्म इसके बाद भी काम आएगा। दीनी इल्म का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं कि दीनी इल्म बच्चे में जब रहेगा तो बच्चा आपकी इज्जत करेगा, बड़े लोगों के अखलाक समझेगा, बड़े लोगों से अखलाक से पेश आएगा, छोटे लोगों के साथ भी अखलाक से पेश आएगा। तो ये चीज़ बहुत मिस हो रही है आजकल माशरे में। सो मैं आपसे एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में करें जहाँ पर आपका बच्चा दीनी और दुनियावी इल्म के साथ
आगे बढ़ सकें। माशाल्लाह सर, कई बातें आप जो है हमारे नाजरीन से शेयर कर रहे थे, अपने ताल्लुक़ से, अपने इदारे के ताल्लुक़ से, अपने वालिद साहब वालिदा के ताल्लुक़ से। नाजरीन देखिए, एक ऐसा इदारा, ख़दीम इदारा है जिससे आप तमाम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मरहूम अब्दुल अज़ीज़ राही साहब थे, जो कि सर के वालिद साहब हैं, उनकी जो बेशुमार खिदमात रहे, तारीख़ी खिदमात, यादगार खिदमात, वो एक ऐसी शम्मा रोशन कर गए हैं जो जिसकी रोशनी आज तक लोग महसूस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर के बाद भी सर के दोनों शहज़ादे हमारे उमर अज़ीज़ सर और जो है आमिर अज़ीज़ सर, इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के माशरे के लिहाज से एक कामयाब इदारा आइडियल इंग्लिश स्कूल नज़र आ रहा है। और हमें चाहिए, दूसरी बात, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि सर जो मरहूम अब्दुल अज़ीज़ राही साहब थे, स्पोर्ट्स में भी जो है बड़ी दिलचस्पी रखते थे, और वो ये चाहते थे कि बच्चा खेल कूद में भी जो है दिलचस्पी रखे और अपनी जिस्मानी एतबार से भी वो तंदुरुस्त रहे और जहनी एतबार से भी फिट रहे और एजुकेशन में आगे बढ़ता रहे। ये भी मैं आखिरी बात जानना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन से आप कुछ आखिरी बात कहना चाहेंगे। बेशक मैं इससे एक बात पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले तो ये इदारे के लिए मेरे वालिद और वालिदा दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज हमारी ये खुशनसीबी है कि आज हम 3-4 लोग अपने घर के इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे स्कूल जब से रन हो रही है, वो स्टूडेंट्स, वो टीचर्स, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे वेलविशर्स हैं, जो और हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ चलते चलते मैं नाजरीन को एक बात बताता चलूँ कि हम, चूँकि आज डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया बहुत चल रही है, आप सब जानते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कितना आम हो चुका है, तो इसके चलते हुए हम स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है दीन सीखें और सिखाएं। आपके सामने दीन की बातें रख रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा दूसरा प्रोग्राम अभी आप जो देख रहे हैं इस्तक़बाल रमज़ान, जो सिर्फ रमज़ान के महीने के लिए हम लोग बनाए हुए हैं, जो आपको इससे फ़ायदेमंद हो सके। और उसके साथ साथ हमारा तीसरा प्रोग्राम है, वो है किरदार बोलता है। इस प्रोग्राम में आपके तालीम को लेकर, आपके किरदार को लेकर, आपके अखलाक को लेकर हमारे रहबर आपकी रहबरी करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम हमारा जो इस्तक़बाल रमज़ान आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से नाज़रीन तक पहुँचाया जा रहा है, इसमें आप अपनी ख़ास बातें जो है शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें, जिसमें कई अहम शख्सियतों के साथ हम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आइडियल स्कूल की तालिब इल्म हूँ। ये इदारा करनूल का ख़दीम इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल से करनूल की अवाम को तालीम के मैदान में उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारी स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। हमारी स्कूल में 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। हमारी स्कूल में लड़के और लड़कियों को अलहदा तालीम दी जा रही है। हमारी स्कूल में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी तालीम दी जा रही है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से खिदमात हैं जो कि हमारे मुस्तक़बिल संवारने के काम आते हैं। तो देर किस बात की, विज़िट आइडियल इंग्लिश स्कूल ताकि और भी जानकारी हासिल कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। शुक्रिया।